Friends, welcome to the Children's Multicultural Storytelling Show. This show will consist children's stories from three South Asian languages. Storytellers will present real life and fairy tale stories in Bangla, Urdu, and Hindi, along with three distinct visual art presentations and English interpretations. My name is Reshmi Chaudhuri. I'm your host of this show and the creative director of this project as well. I will introduce you with three fantastic storyteller friends of mine. Their names are Sahar Ali, Sylvia Reshmin, and Prashanjit Vishwas. You will get to know them very soon. First, let me introduce you with my first friend, Sahar Ali. Sahar will be telling a story on four friends and the band of thieves in Urdu, which is a language for many people in Pakistan. Sahar worked as a journalist and communicator for many years in South Asia. She also developed arts and craft activities to introduce elementary school students to South Asian arts and culture here in Austin, Texas. The story that Sahar will tell is inspired by Grimm's fairy tale, The Town Musician of Bremen. This retelling in Urdu reimagines the four animals: a donkey named Bhola, a dog named Raja, a cat named Mano, and a rooster called Cuckoo, who are let go by their masters after they are all robbed by a troop of thieves. They band together and set forth in search of better luck when they come upon an empty house in the forest where the thieves live and stash their ill-gotten wealth. They vow to teach the thieves a lesson. When the robbers return to the house at night, the four friends have blown out the candles so it's pitch dark. One by one, they attack the chief of the troop, who is sent on ahead of his troop to investigate. Manu scratches his face. Bhola kicks him, sending him flying towards the door, where Raja bites him in the ankle and Cuckoo the rooster sharks in his ear, cock-a-doodle-doo, cock-a-doodle-doo. Frightened out of his wit, the chief runs out of the house, telling the other robbers that an ogre, a giant, and a monster has taken possession of the house, attacking him from every corner. Run for your lives, he tells the other robbers, and they flee, never to return. The triumphant friends return all the stolen goods and go back to live happily ever after with their masters while remaining the best of friends. The moral of this story is, if you set out with good intention, then justice will always be in your favor. Sahar will use shadow puppet as the visual art form to present her story. Let's enjoy. ये कहानी है चार दोस्तों की, भोला, राजा, मानो और कुकू। भोला एक छोटा सा गधा था जो एक किसान के पास रहता था। एक रात डाकू किसान के घर घुस आए और सब लूट कर ले गए। किसान बेचारा इतना गरीब हो गया कि वो भोला को पेट भर खाना नहीं खिला सकता था। उसने मजबूर होकर भोला से कहा, जाओ तुम कोई और मालिक ढूंढ लो।
बेचारा भोला दूसरा मालिक ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते उसने अजीब आवाज़ सुनी, भऊ 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 बू हू हू। पेड़ के नीचे एक नन्हा सा कुत्ता बैठा रो रहा था। क्या हुआ? भोला ने पूछा। कुत्ता, जिसका नाम राजा था, रोते रोते बोला, मैं एक रहम दिल सुनार के यहाँ पहरा दिया करता था। डाकू उनका सब कुछ लूट कर ले गए। अब वो मुझे नहीं रख सकते, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे साथ चलो, भोला ने कहा, दोनों मिलकर गुजर कर लेंगे। चुनाचे भोला और राजा साथ हो लिए। थोड़ी देर बाद दोनों ने अजीब आवाज़ सुनी, म्याऊ म्याऊ म्याऊ। सड़क के किनारे एक बिल्ली बैठी बिलक बिलक के रो रही थी। जब पूछा क्या हुआ तो बोली, मेरा नाम मानो है। मेरी मालकिन बेचारी बेवा थी, जिसका सब कुछ डाकू लूट कर ले गए। वो अब मुझे कैसे पाल सकती है, कैसे पेट भरूं? भोला और राजा दोनों बोले, हमारे साथ चलो, हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। तो मानो भी उनके साथ चल पड़ी। इतने में एक और आवाज़ सुनाई दी, कुकड़ू कू ऊ। सामने जंगले पर एक खूबसूरत लाल मुर्गा बैठा फूट फूट कर रो रहा था। जब तीन दोस्तों ने वजह पूछी तो बताया, मैं हूँ कुकू, एक रईस दुकानदार के यहाँ रहता था, लेकिन डाकुओं ने से लुटने के बाद वो बहुत गरीब हो गए और मुझे नहीं रख सकते हैं। कोई ठिकाना नहीं। भोला, राजा और मानो एक साथ बोले, चलो हमारे साथ। इस तरह भोला, राजा, मानो और कुकू मिलकर चल दिए अपनी तकदीर की तलाश में। मीलों चलने के बाद एक जंगल के किनारे पहुंचे। जंगल घना था, लेकिन मानो की तेज नज़र ने अंधेरे में रोशनी देखी। ज़रूर कोई घर होगा, उसने कहा, वहाँ शायद कुछ खाने को मिले और आराम कर सकें। थोड़ी देर में चारों उस घर के दरवाजे तक पहुँचे। खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा न खोला। भोला ने फिर खटखटाया तो दरवाज़ा खुद ही खुल गया। अंदर घर था बहुत शानदार। फर्श पर कालीन, दीवारों पर तस्वीरें और उम्दा मेज़ कुर्सियाँ सजी हुई थीं, और पीछे के कमरों में आरामदेह पलंग तैयार थे। बावर्ची खाने में ढेरों खाने की चीज़ें थीं, लेकिन घर वाला कोई नहीं था। अरे, भोला अचानक बोला, ये कुर्सियाँ और मेज़ें तो मेरे मालिक के घर में होती थीं। फिर राजा चौंका, और ये कालीन, ये तो सुनार के घर में बिछे हुए थे। ओहो, मानो चीखी, ये तस्वीरें मेरी मालकिन के घर में सजी हुई थी। और ये बर्तन, कुकू ने कहा, ये सारे मेरे मालिक के हैं। अब चारों दोस्तों को समझ में आया कि वो डाकुओं के अड्डे में खड़े थे। डाकू किसी और को लूटने गए होंगे, राजा ने कहा। जब वो वापस आएंगे तो हमारा क्या होगा? मानो घबरा कर बोली। भोला को गुस्से में एक तरकीब सूझी। हम सब उनको ऐसा सबक सिखाएंगे जो कभी नहीं भूलेंगे। कुकू, जिसे बेहद भूख लगी थी, बोला, चलो उनके आने से पहले कुछ खा लें, फिर सोचेंगे। खाना खाने के बाद सब आराम करने लेट गए। बाकी तीनों सो गए, लेकिन राजा को पहरा देने की आदत थी, सो वो जागता रहा। अचानक उसको एक आहट सुनाई दी। डाकू वापस आ रहे थे। राजा ने मानो को जगाया। डाकू खिड़की के पास आपस में सरगोशियां कर रहे थे। मानो चुपके से उनके पीछे छुप गई और बातें सुनने लगी। एक ने कहा, कौन हमारे घर में घुस आया? हम तो बत्तियां जला कर गए थे और अब सब बुझी हैं। दूसरा बोला, कहीं सिपाही हमें पकड़ने के लिए ना बैठे हों। तीसरे ने कहा, सरदार को जाकर देखना चाहिए। इससे पहले कि डाकू सरदार अंदर जाए, मानो ने वापस जाकर सबको जगाया और खबरदार किया। अब क्या करें? कुकू परेशान होकर बोला। घबराओ मत, भोले ने इत्मीनान दिलाया। मानो, तुम जाकर आतिशदान के अंदर दबक कर बैठो। राजा, तुम दरवाजे के पीछे बैठो और कुकू, तुम दरवाजे के ऊपर। मैं कमरे के बीच में खड़ा रहूँगा। अब बिल्कुल खामोश रहना। सब अपनी अपनी जगह बैठ गए
और अंधेरे कमरे में सन्नाटा छा गया। दरवाज़ा खुला और डाकू सरदार डरते डरते अंदर आया। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई न दिया सिवाय मानो की चमकती हुई आंखों के। वो समझा कि कोयले दमक रहे हैं। उसने सोचा कि इनको फूंक कर भड़काए ताकि कमरे में रोशनी हो और कुछ नजर आए। आतिशदान के पास जाकर उसने जोर से मानो की आंखों में फूंक मारी तो मानो ने गुर्रा कर डाकू सरदार की नाक पर पंजा मारा। सरदार चीख उठा और पीछे लुढ़क कर भोला से टकराया तो भोला ने ऐसी लात मारी कि सरदार उड़ता हुआ दरवाजे तक जा पहुंचा। वहां राजा ने उसका टखना दांत में दबाकर काटा और सरदार उछला। फिर कुकू उसके कान में जोर से चिल्लाया, कुकड़ों को, कुकड़ों को। कांपता कांपता सरदार वापस अपने साथियों के पास दौड़ा और चीख कर बोला, भागो भागो, अंदर तो एक देव या जिन या आदमखोर है। क्या मतलब? चोरों ने पूछा। कमरे जितना बड़ा है, आतिशदान के पास आंखें हैं, उसके कमरे के बीच में उसकी टांगें और दरवाजे के पास मुंह और दांत। मेरा मुंह नोचा, फिर टांग काटी और कान में चिल्लाया, पकड़ो तो, पकड़ो तो, चलो भाग चलो जल्दी। ये सुनकर चोर इतना डरे और दुम दबाकर ऐसा भागे कि फिर कभी वापस ना आए। चारों दोस्तों ने चोरी का सामान अपने अपने मालकों को वापस पहुंचाया और खुद भी उनके साथ फिर से खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन चारों की आपस की दोस्ती हमेशा कायम रही। Our next storyteller is Sylvia Reshman. Sylvia will be reading the real life story of a female athlete in Bangladesh named Rehana Parveen from a book titled Transformer. Here is the cover of the book Transformer, and here it is Rehana Parveen. The book was published by UNDP Bangladesh and Her Story Foundation. Sylvia professionally is an architect and she lives in California Bay Area. On her side life, she happily pursues artwork, which includes fine art and fusion dance. She has been working as a Bangla calligraphy artist for many years, and she also teaches South Asian art to children and adults. So the story that Sylvia will tell is a brief depiction of the life story of Rehana Parveen, who played in the national teams for 3 different games: soccer, handball, and kabaddi, which is a traditional game in Bangladesh. The story tells how Rehana overcame social adversity and stigma against women's sports in a traditional South Asian society and pursued her dream to be an athlete. Sylvia will narrate the story in English with the help of her own handmade puppets, Mitu and Monty. And I will tell you the story in Bangla, which is my mother tongue. This is the story of Rehana Parveen. আচ্ছা, তোমরা সবাই তো খেলতে ভালোবাসো, তাই না? তোমাদের মধ্যে কেউ হয়তো ক্রিকেটে ভালো, কেউ দৌড়ে ভালো, কেউ ফুটবল, সাঁতার বা সাইক্লিংয়ে, কেউ মার্শাল আর্টে, আবার কেউ বা দাবায়। তোমরা এমন কাউকে কি চেনো যে একসাথে অনেক খেলায় চ্যাম্পিয়ন? আজ তোমাদের সাথে এমন এক সুপার ওমেনের পরিচয় করিয়ে দেব যিনি একই সাথে
3 ধরনের খেলায় জাতীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন, আর সেগুলো হলো কাবাডি, হ্যান্ডবল আর ফুটবল। তার নাম রেহানা পারভীন, একজন সাবেক অ্যাথলেট। আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে রেহানা বহুবার বাংলাদেশের জন্য সুনাম বয়ে এনেছে। কুড়িগ্রামে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে রেহানা বড় হয়ে ওঠে। ক্লাস 3 থেকে স্কুলের স্পোর্টসে রেহানা অংশ নিয়ে পুরস্কার জিতে এসেছে, যা তাকে খেলাধুলাকেই জীবনের লক্ষ্য হিসেবে বেছে নিতে উৎসাহ জুগিয়েছে। এইচএসসির পরপরই রেহানা আনসার বিটিপি একাডেমিতে যোগ দেন। তিনি স্পোর্টসের নানা ইভেন্টে অংশ নিতে শুরু করেন এবং ফুটবল কোচ হিসাবে টিমকে চ্যাম্পিয়ন করেন। এরই ফাঁকে তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি পাশ করে নেন। তার খেলোয়াড়ি জীবনের শুরুটা হয় হ্যান্ডবল দিয়ে। তিনি 1996 সালে ষষ্ঠ ও সপ্তম বাংলাদেশ গেমসে অংশগ্রহণ করে চ্যাম্পিয়ন হন। 2000 সালে এশিয়ান ইয়ুথ হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে তার আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অভিজ্ঞতা হয়। বাংলাদেশের প্রথম মহিলা ফুটবল দলের সদস্য হিসেবে নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যান। 2006 সালে রেহানা আন্তর্জেলা নারী ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। এছাড়াও তিনি শ্রীলঙ্কা এবং ভারতে খেলার জন্য আমন্ত্রণ পান। 2012 সালে তিনি বাংলাদেশের প্রথম নারী হিসাবে এএফসিসি লাইসেন্স কোচিং কোর্স সম্পন্ন করেন। একই বছর তিনি লন্ডনে এএফসি উইমেন্স অলিম্পিক কোয়ার্টার ফাইনাল টুর্নামেন্টে ট্রেনার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ওই বছর তিনি নারীদের প্রথম কাবাডি অলিম্পিক কাপে টিম ম্যানেজার হিসেবেও দায়িত্ব নেন। কিন্তু রেহানার এই অর্জনের পথ মোটেও সহজ ছিল না। ট্রাউজার, ট্র্যাক স্যুট আর হাফ প্যান্ট পরে খেলার জন্য অনেক লড়তে হচ্ছে তাকে। লড়তে হয়েছে আর্থিক দুর্দশার সাথে। নারীদের খেলাধুলায় উৎসাহ দিতে কুড়িগ্রামে রেহানা খুলেছেন রেহানা স্পোর্টস একাডেমি। তিনি মেয়েদের পিছু টান আর অবরুদ্ধতার কথা জানেন, তাই তার একাডেমিতে সবসময় মেয়েদেরকে ভর্তি হওয়ার জন্য উৎসাহ দেন তিনি। সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য কাজ করেন তিনি। খেলাধুলায় নিজের অর্জন আর অবদানের জন্য রেহানা পারভীন 2013 সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে প্রেসিডেন্ট আনসার সেবা পদক গ্রহণ করেন। রেহানা বলেন, প্রত্যেক নারীর আত্মপরিচয় গড়ে তোলার ক্ষেত্রে চেষ্টা করা উচিত। স্বপ্ন পূরণ করতে চাইলে কোনো বাধা না মেনে নিজের ইচ্ছা ও চেষ্টাকে মূল্য দিতে হবে। নারীকে আপন যোগ্যতায় পরিচিত হতে হবে। It's a beautiful day. Birds are chirping, sun is up, and everybody's at home. That means we have plenty of time to play. I wonder, Meetu is already up. I should go check on him. Let me go. Meetu, get up. It's a beautiful day outside. I want to play. Get up, Meetu. Oh, Monty, go away. I want to sleep more. And don't you know girls don't play anymore? Me too. Don't say that. Girls actually play
A lot of games. Do you know about Rehana Parveen from Kurigram? She's a young girl whose heart is always on the playing field. Girls loves to play. Oh, Monty, let me sleep. I don't want to hear any story. Okay, me too. I'll let you sleep. But let me tell this beautiful story about Rehana Parveen to our beautiful friends. Hi friends. Today I'm going to tell you a little story about Rehana Parveen from Kurigram. Kurigram is a small village in Bangladesh. Rehana lives there. Rehana loved sports and outdoors. The youngest of 7 children she is, but she was very competitive. Many people said that she would get up super early of the day and practice riding bikes. Many people in villages told her not to bike, discouraged her, and said girls should not ride bikes. Her neighbors told that, her teachers told that, her friends told that, but Rehana didn't listen. All she cared about, biking outside, doing all sorts of sports and outdoor activities. Her parents got worried. They tried to influence her in music for suitable girl activities. But Rehana would skip all those classes just to play at the football field. In school, Rehana played all kinds of sports and brought home many awards and medals. And when she completed her SSC secondary exams and joined the Bangladesh Ansar Special Forces, her athletic nature had found its calling. What? Monty? Really? Did Rehana go to the Bangladesh Ansar Special Forces? Am I hearing right? Oh, me too. You woke up. Yes. The story I'm telling about Rehana today, she actually joined the Bangladesh Ansar Special Forces. Her athletic nature had found its calling. At the same time, Rehana was selected for Bangladesh's first under 19 women's football team. Can you believe that, me too? That is such a great achievement, isn't it? Ooh, yes, Monty. Tell me more about her. She looks like a very interesting woman. Yes, I'll tell you more about her. It was rare to see girls playing football, and some people even protested outside the stadium. But the girls played on, and Rehana also. Rehana did really good job advancing her football skill. And also, she did well in handball and played in Bangladesh national kabaddi team. What? What did you say, Monty? Did she really join the Bangladesh national kabaddi team? How many national teams she was in? Yes, me too. She was in a lot of national teams of Bangladesh. Bangladesh women's sports are not given much importance, you know. There is not even money or support. For girls' teams and professional female athletes have a hard time finding equipment and good trainers. And because of lack of training, they always cannot pursue their multi-talents in different sectors. I see, Monty. But Rehana's story is very unique. She excelled in all of those kinds of sports. Yes, me too. Yes, she struggled as woman and she understood the problems of female athletes in Bangladesh.
Besides, many girls get married before they are 18. So she has been speaking up for gender equality in sports for over a decade. It's been 10 years she's working side by side with Bangladesh government so that female athletes gets enough attention money wise, age wise, education wise, in every aspect. You know me too? And not only that, me too, do you know that? Through her efforts over the years, the salaries of female national players have been raised from Taka 200 to Taka approximately 30,000. Can you imagine, me too? This is a remarkable progress that she has done, right? Oh, Monty, she's a brilliant athlete and she's also not doing good for herself, she's also doing good for everybody. Bravo, Rehana! Yes, me too. I cannot be enough proud of her. Rehana has won many awards, but the one that stands out is the President Ansar Sheba Podok for her accomplishment as the coach of Bangladesh Ansar's football team. Now she coaches a Bangladeshi female football team. Can you imagine, me too? That is a remarkable achievement. First, achieving her dream. Second, she has worked for female athletes' salary expansion. And then now she coaches a football team. Rehana believes that every woman must be independent and chase her dreams. Women must work for their rights and to secure their place in the world. Only then can we achieve gender equality. You see, me too? We can all make our dreams come true. You too can make a difference by playing outside in a local team or cheering them. I want to play outside today. Would you join me? Yes, Monty. I would definitely encourage you to play more and I will teach you all about football today. That was a brilliant story. Thank you, Monty. Thank you, me too. You're my best friend. And you are my best friend too. Thank you, everyone, for listening us. Bye. My third and last storyteller is Prosenjit Bishwas. Prosenjit professionally is an engineer. He lives here in Texas and he is originally from India. His hobbies are storytelling, recitation, dramatics, and traveling. Prosenjit would be telling 5 short stories from the Panchatantras. Panchatantra means 5 treatises. It is an ancient Indian collection of interrelated animal fables in Sanskrit verses and prose, arranged within a frame story. The text's author is unknown but has been attributed to Vishnu Sharma. The stories are based on older oral traditions with animal fables that are as old as we are able to imagine. The 5 stories that he would be reading are The Foolish Traitor, Hunter and 4 Friends, The Musical Donkey, The Talkative Tortoise, Elephant and Hares. All the 5 stories convey 5 different morals that would add values towards leading a practical, wise, honest, confident lifestyle. Prosenjit will use colorful digital animation and dramatics for his visual presentation. He will be telling his stories in Hindi. However, there will be a slide before each of the 5 stories that says in English what the story will be about.
Don't forget to read those slides. Let's enjoy. एक गांव में एक दर्जी और उसकी बीवी रहती थी। घर में रसोई के लिए आग जलाना था और उसकी बीवी ने कहा कि जाओ लकड़ी ले आओ। अपना दर्जी निकल गया जंगल की तरफ लकड़ी लाने। उसको एक मोटा तगड़ा पेड़ मिला। सोचा कि इसे काट के बहुत सारा लकड़ी एक बार में हाथ लग जाएगी। तो उसने उस मोटे पेड़ को काटना चालू किया। पहला बार करते ही उस पेड़ से धुएं की तरह कुछ निकला और वो धुआं एक जिन के रूप में सामने प्रकट हो गया। दर्जी पहले डर गया। उसके बाद जिन ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। असल में मैं इसी पेड़ में रहता हूं, इसीलिए मेरा यह अनुरोध है कि तुम इस पेड़ को ना काटो। दर्जी चालाक था। उसने कहा, लेकिन मैं ये क्यों मानूं? इससे मेरा क्या फायदा? जिन ने फिर कहा कि अगर वो पेड़ ना काटे तो उसकी कोई भी मांग हो, जिन उसे पूरा कर देगा। दर्जी ने सोचा, फिर जिन से कहा कि वो कल आके बताएगा। दर्जी जंगल से वापस घर आया और अपनी बीवी से मशवरा करने लगा कि कल क्या मांगा जाए। अब दर्जी की बीवी उससे भी ज्यादा चालाक और साथ में लोभी भी थी। उसने कहा कि क्यों ना जिनसे एक और सर और 2 एक्स्ट्रा हाथ मांगा जाए। इससे दर्जी और ज्यादा सोच सकेगा और ज्यादा काम भी कर पाएगा। दुगना दिमाग और दुगना काम। दर्जी को ऊपर ऊपर से यह आइडिया बहुत पसंद आया। उसने अगले दिन सुबह सुबह जंगल में जाकर जिन के सामने ये मांग रख दिया। अब जिन भी उसके रिक्वेस्ट को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ा और फिर 2 सर और 4 हाथ लेके बहुत ही खुश होके जंगल से फिर गांव की तरफ आने लगा अपना दर्जी। गांव में घुसते ही 2 सर और 4 हाथ वाले आदमी को देख गांव वाले पूरे डर गए। सबने सोचा कोई राक्षस आ गया है। सबने झुंड में ईंट पत्थर लाठी बरसाया और उसको गांव से खदेड़ दिया। वो बेचारा उसके बाद से जंगल में ही रहने लगा और कभी गांव वापस ना आ पाया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, हर फैसला काफी सोच विचार के साथ लेनी चाहिए, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। एक कहानी है 4 दोस्तों की। एक हिरन, एक कौवा, एक कछुआ और एक चूहे की। उनकी दोस्ती काफी पक्की थी और पूरे जंगल में फेमस थी। वो 4 हमेशा मस्त रहते और गाना गाते, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। पर एक दिन उस जंगल में एक हंटर आया। उसने एक जाल बिछाया और अपना हिरन
हिरन बेचारा फंस गया। अब हिरन के बाकी 3 दोस्त उसे छुड़ाने के लिए उन सब ने एक प्लान बनाया। हिरन ने पहले जाल से खुद को छुड़ाने के लिए काफी एक्टिंग किया और फिर फाइनली टायर्ड होके मिट्टी पे गिर जाने का एक्टिंग भी किया। उसने अपनी आंखें खुली रखी ताकि लगे कि वो मर चुका है। कौवा और दूसरे पंछी भी उसके ऊपर जाकर बैठ गए ताकि जंगल के बाकी जानवरों को भी लगे कि वो मर गया है। ठीक उसी समय कछुए ने भी हंटर के सामने से चलना चालू किया। उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हंटर ने सोचा कि हिरन तो मर ही गया है, अब उसको पहरा देने का क्या काम। वो कछुए के पीछे भागा और तुरंत चूहा आकर अपने नुकीले दांतों से जिस जाल में वो हिरन फंसा था उसको काटने लगा और जाल के तो टुकड़े टुकड़े हो गए। हिरन आजाद हो गया और फौरन वहां से भाग निकला। और उधर कौवे ने भी जल्दी से उड़कर कछुए को जमीन से उठा लिया। हंटर के आंखों के सामने से हंटर कुछ नहीं कर पाया। 4 दोस्त हंटर को चकमा देते हुए भाग निकले और फिर से गाने लगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर साथ रहो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। एक गांव में एक धोबी रहता था। उसका एक गधा था। गधा बेचारा सारा दिन कपड़ा पीठ में लद के घर घर पहुंचाता रहता, लेकिन रात को धोबी उसे खुला छोड़ देता। वो रात भर गांव के गलियों में, मैदानों में, खेतों में मस्त मौला बन के घूमता रहता और गाना गाता। हाँ, उसको गाने का बहुत शौक था। हमेशा किसी ना किसी तरह गाने के फिराक में रहता था। अचानक एक दिन उसकी भेंट हो गई एक लोमड़ी से। दोस्ती हो गई दोनों में। दोनों ने ये तय किया कि अब से हर रात गांव में जब सब सो रहे होंगे तब घर घर जाके खाना जुगाड़ करना अच्छा रहेगा। लोमड़ी अपने हिसाब से पोल्ट्री के मुर्गी, अंडे, मछली, मांस ये सब इकट्ठा करता था और अपने गधे महाशय मस्ती से अनाज, सब्जी, फल वगैरह खाता रहता था। ऐसे ही एक रात दोनों अपने मिशन में थे और दूर गगन में पूनम के चांद को देख अपने गधे महाशय को गाना गाने का मन किया। दोस्त लोमड़ी ने मना किया, पर इतना सुहाना मौसम था, ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, चांद का कोमल मुलायम रोशनी में पूरा गांव बिल्कुल स्वर्ग जैसा दिख रहा था। अब गधे महाशय को गाना गाने से वो रोक नहीं पाया। चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस बस हो गया कांड। उसका बेसुरा बेहुदा गाना सुन के सारे गांव वाले जग गए। लोमड़ी तो सियाना था, वो तुरंत भाग गया, पर गधा अपना गाने में तब भी खोया हुआ था। आखिर गधा जो ठहरा। गांव वालों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया चोरी करते हुए। सब ने मिलके उसकी शिकायत धोबी से कर दी और धोबी बहुत गुस्सा हुआ गधे पे। उस दिन से उसका रात में आजाद होके टहलना पूरी तरह बंद हो गया। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, कोई भी चीज करने का सही समय और सही जगह होती है। कुछ भी कभी भी कहीं भी आप नहीं कर सकते बिना सोचे। There is a right time and place to do anything.
ये कहानी है एक कछुए की। नाम था उसका कम्बुग्रिबा। एक तालाब के पास रहता था। काफी खुशहाल थी उसकी जिंदगी। उसके दोस्त थे 2 हंस। अब क्योंकि कम्बुग्रिबा एक बातूनी कछुआ था, उसके दोनों दोस्त उसके हरदम के पच 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 से परेशान रहते थे। पर दोस्ती दोस्ती आखिर दोस्ती होती है, एक बार कर ली तो निभाना भी पड़ता है। इसीलिए दोनों बड़े प्यार से उसकी ऊट पटांग बातों को आखिर तक झेल ही लेते थे। 1 साल पुरानी हो गई थी उनकी दोस्ती। सब ने मिलकर नए साल आने की खुशी भी मनाई और मस्त पार्टी किया। न्यू ईयर बैश अब नए साल में कछुए ने जरूरत के सिवा ज्यादा ना बोलने की सौगंध भी खाई। वही उसका न्यू ईयर रेजोल्यूशन था। उसके दोनों दोस्त ने भी ये सुन के राहत की सांस ली। काफी खुश थे वो दोनों भी। सब ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन इस बार गर्मी का मौसम ठीक नहीं लगा। कुछ ज्यादा ही गर्मी थी। तालाब का पानी भी सूखने लगा था। जंगल के बाकी सब जानवरों के लिए पानी की किल्लत होने लगी। अब पानी के बिना कोई जिंदा कैसे रहे? आखिर जल का दूसरा नाम है जीवन। नो जल मतलब नो जीवन। कछुए के 2 जो हंस दोस्त थे, उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने कछुए से कहा कि पास में एक और जंगल है, बहुत घने पेड़ है वहां एक और तालाब है, काफी बड़ा। इतना सारा पानी है वहां के एक समर क्या, सालों साल गर्मी रहे तब भी नहीं सूखेगी। तो अगर सबको जिंदा रहना है तो वहीं पे जाके बस जाना अकलमंदी का काम होगा। कम्बुग्रिबा मतलब अपना कछुआ, उसको प्लान अच्छा तो लगा, पर वो सोचने लगा कि अगर वो अपना स्लो मस्त मौला चाल से सफर चालू किया तो वो कभी उस नए जंगल तक नहीं पहुंच पाएगा। मंजिल आते आते ही प्यास के मारे वो कहीं मर ना जाए। वो टेंशन करने लगा बहुत ज्यादा। लेकिन उसके दोस्त तो थे ही। हंसों ने कहा कि टेंशन नहीं लेने का। उन्होंने एक प्लान बनाया ताकि कछुआ भी उनके साथ उस नए जंगल में जा सके। जंगल से एक लकड़ी लाया गया। उसके एक एक छोर को एक एक हंस ने अपने मुंह से पकड़ लिया और कछुए से कहा कि वो लकड़ी के बीच में पकड़ के बस स्थिर रहे। हाँ, ठीक जैसा इस पिक्चर में देख रहे हैं वैसा ही। लकड़ी के दोनों एंड में 2 हंस और बीच में कछुआ। हंसों ने अपनी उड़ान चालू की। कछुए को बार बार यह कह दिया गया कि उड़ान के समय कभी अपना मुंह ना खोले। काफी ऊंचे उड़ रहे थे वो लोग। एक जंगल से दूसरे जंगल तक के सफर में कुछ गांव भी आए बीच में। नीचे गांव वालों को जब दिखा कि एक कछुआ ऊपर आसमान में उड़ रहा है तो वो उनको यकीन नहीं आया। वो हैरान अचंभित होके पूरे गांव को इकट्ठा करने लगे और नीचे बहुत सारे लोगों का जमघट हो गया। पूरा हल्ला गुल्ला मच गया। अब इसी मौके में अपना बातूनी कछुआ, उसकी नजर नीचे गई और वो पूछने लगा, अरे नीचे ये हल्ला गुल्ला क्यों? इतने सारे लोग क्यों हैं? कोई मेला चल रहा है क्या? और वो कहते ही वो बेचारा नीचे गिर गया और दूसरे जंगल के भरपूर पानी से भरा हुआ तालाब उस कछुए के नसीब में ना हुआ। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, हम सबको सही मौके में ही बस मुंह खोलना चाहिए, वरना बेवजह परेशानी आ सकती है। One should speak only at the right moment. Otherwise, it can lead to bad consequences.
एक जंगल में हाथियों का एक झुंड था। वो सब मिलके जंगल में जो एकमात्र तालाब है बस उसी के आसपास हुड़दम मचाया करते थे। अब क्योंकि वो बहुत ताकतवर थे, किसी और जानवर की हिम्मत नहीं होती थी कि उस तालाब के आसपास भी आए। प्यासे जानवर परेशान होकर दूसरे जंगलों में जाने लगे थे। हाथी से पंगा लेके कौन अपनी जान जोखिम में डाले। अब जंगल में खरगोशों का भी एक झुंड था। वो भी वही मास माइग्रेशन करने ही वाले थे, पर जाने से पहले खरगोशों के राजा ने सोचा कि हाथी के झुंड के नेता के साथ क्यों ना एक आखिरी बार मीटिंग किया जाए, विनती की जाए। खरगोश राजा ने हाथी नेता के पास जाकर अपनी उलझन बताई और विनती किया कि क्योंकि ये जंगल सबका है और इसीलिए इस जंगल के तालाब में सबका हक है, सबको यहां से पानी पीने का अधिकार दिया जाए। पर हाथियों के नेता वो बहुत अभिमानी, बहुत एरोगेंट और बहुत घमंडी थे। उन्होंने खरगोश राजा की विनती को दरकिनार करते हुए उसका जम के अपमान किया और भगा दिया। खरगोश राजा ने फिर उस हाथी को सबक सिखाने की ठान ली। उसने हाथी से कहा कि इस तालाब में एक कुल देवता रहते हैं जो बिल्कुल उस चंदा मामा जैसा दिखते हैं और उनको बस विनम्र जानवर ही पसंद है। ये हाथी जिस तरह हठी अंदाज दिखा रहा है वो उनको कतई ही पसंद नहीं होगा और एक बार अगर गुस्से में उनके जुबान से कुछ घातक श्राप निकल गया तो किसी की खैर नहीं। हाथी को खरगोश की बातों में यकीन नहीं आया, ठहाके देके हंसने लगा। फिर सोच के कहा कि अगर खरगोश सच कह रहा है तो वो उस चंदा मामा के हमशक्ल देवता को साक्षात देखना चाहेगा। खरगोश ने वादा किया कि क्योंकि वो अभी गुस्सा है तो आजकल नहीं दिखेंगे, लेकिन मैं विनती करके कुछ दिन बाद उनको यहां ले आऊंगा। पर तुम भी वादा करो कि उसके बाद तुम हमें उस तालाब में पानी पीने दोगे। अब हाथी राजी हो गया, ये सोच के कि ये पिद्दी सा खरगोश कोई देवता वेवता नहीं ला पाएगा। कुछ दिन बाद पूनम की एक रात खरगोश राजा फिर तालाब के पास आया। हाथी नेता वही बैठा हुआ था। खरगोश उस हाथी को तालाब के बीचों बीच ले गया और तालाब के स्थिर जल में झांकने को कहा। बाकी सब अंधेरा था, बस एक बड़ा सा थाली जैसा रोशनी से भरा हुआ एक चीज हाथी को दिखाई दिया तालाब में। वो बिल्कुल चंदा मामा जैसा दिखने में था। खरगोश ने कहा, ये देखो देखो, यही है तालाब के वो कुल देवता। अगर वो अप्रसन्न हो गए तो बस पूछो मत, कसम पैदा करने वाले की पूरा भस्म हो जाओगे। हाथी को अब यकीन आया, हालांकि वो समझ नहीं पाया कि पानी में वो जो देख रहा है वो दरअसल ऊपर के असली चंदा मामा का ही प्रतिबिंब है। खरगोश ने डर के वातावरण को और बढ़ाते हुए कहा कि ये देखो, क्योंकि ये कुल देवता अब धरती में आ ही चुके हैं तो अब उनके कहर से कोई नहीं बच पाएगा। पर मैं उनसे बात करूंगा और कहूंगा कि तुम्हें सजा ना दे, क्योंकि तुम हाथी मेरे साथी, लेकिन तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। हमें अब से तालाब का पानी पीने का भरपूर अधिकार रहेगा और तुम या तुम्हारे झुंड का कोई भी हमें परेशान नहीं करेगा। हाथी नेता डरा हुआ था, वो तुरंत राजी हो गया और तब से खरगोशों के झुंड भी भरपूर तरीके से तालाब के पानी का आनंद उठाने लगे। So moral of the story is, a little ingenuity can solve a seemingly big problem. कभी कभी एक छोटी सी सोच, एक मासूम सा तिक्रम भी बड़े बड़े समस्या का समाधान दिला देती है।
I hope you enjoyed this show and all the visual arts that our storytellers presented along with their stories. Very often, our family members also joined with us in preparing those crafts during this lockdown time. Let us know what you think about all the languages that you heard today and the stories and their contents. Let us know how we can improve and what you like to see in the future in the Multicultural Storytelling Show. Thank you for being with us. Bye.